Hello students. Last time we started with the cross multiplication method and we completed question 1 of exercise 3.5. So today I will continue with that exercise only. क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट करेंगे आज, उसके बाद मैं क्वेश्चन 2 लूंगा. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 3. Solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication method. दो इक्वेशंस गिवन है. Then 3x plus 2y. सब्स्टिट्यूशन से आप ट्राई करेंगे इसको. यू नो कि कैसे करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं सॉल्व करूंगा. अगर हम इसको कंपेयर करें विद द जनरल इक्वेशंस तो a1 क्या आएगा यहाँ. दैट मींस ये लिखना जरूरी है. कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस विद द जनरल लीनियर इक्वेशंस. तो आई विल गेट a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू 9. नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन. जो हमने क्वेश्चन किए थे पहले, जो इस पे क्वेश्चन किए हैं उसमें इन कांस्टेंट को मैंने इधर रखा है. अब आपके पास चॉइस है, चाहे इन कांस्टेंट को इधर ले आओ, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें 1 रहेगा लास्ट में. अगर आप कांस्टेंट इधर रखते हैं तो फॉर्मूला में -1 आएगा. तो मैं आज कांस्टेंट को इधर रख के ही कर रहा हूं. लेट्स सी क्या बनता है. a2 कितना है 3, b2 2 एंड c2 इज 4. So what's the formula? It is x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to y upon c1 a2 minus c2 a1. अब यहां पे 1 आता है अगर ये कांस्टेंट इस साइड पे हो, ठीक है. अब ये कांस्टेंट ऑलरेडी इधर है तो यहां मैं -1 दे. That's the difference only. पहले क्वेश्चन में हमने 1 लिखा होगा, वो इसलिए कि कांस्टेंट दोनों इस तरफ थे. तो ये बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1. b1 c2 देखेंगे किसके इक्वल आएगा 20 माइनस b2 c1 18 y ओवर c1 a2 27 माइनस c2 a1 8 4 32 माइनस 1 अपॉन a1 b2 16 माइनस a2 b1 15. So just see, I think now it's simple. It is x upon 2 equal to y upon -5 equal to -1 upon 1. So comparing, पहले ये ले लेते हैं x upon 2 equal to -1. It is -1 upon 1, वो 1 ही रहेगा. -1 upon 1 -1 रहेगा. Therefore x equal to -2. y upon also y upon -5 equal to -1. Therefore y equal to 5. So you got the solution for x and y. और वही हमें फाइंड करना था. एक बार इक्वेशन में पुट करके भी देख लें. 8 into -2 is -16. 5 5 is 25. 25 minus 16 is 9. इसमें पुट करके देख लें. 3 into -2 -6. 5 2 is 10. 10 minus 6 is 4. So that means the solution is correct. अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें रीचेक कर सकते हैं. I am coming back to question 2. Question 2 is, for what value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? Equations दिए 2x 3y equal to 7, 5 2 is 10, 10 minus 6 is 4, so this is, I think now it's simple. It is x upon 2 equal to -1 plus 2y upon -5 equal to 0. So
a minus b into x plus a plus b into y equal to 3a plus b minus 2. Question है, for what value of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution? एक तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन जरूर पता होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये जो कांस्टेंट्स हैं यानी कि जिसमें x और y नहीं है, either they should be on this side, right hand side, or both of them should be on this side। ऐसा नहीं है कि 7 आप इस साइड ले लें और इसको इधर रखें तो बात नहीं बनेगी। यही लिखना है, कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस विद द जनरल इक्वेशंस। तो a1 कितना आएगा, but this sentence you have to write in exam, comparing the above equations with the general equations, general linear equations। a1 आएगा 2, b1 आएगा 3 and c1 is 7। now a2 is coefficient of x here, which is a minus b। b2 is coefficient of y here, which is a plus b, and c2 is the constant, which is 3a plus b minus 2। now because the above system of equations have infinite many solutions, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, therefore कंडीशन क्या थी, a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2। this implies what is a1 here, 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b equal to 7 upon 3a plus b minus 2। now we have to compare first this and this and then this and this। हम कंपेयर करेंगे, हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी ए बी में, लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, हम उनको फिर सॉल्व करेंगे और ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेट मी राइट कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग के लिए आप किन्हीं दो को कर सकते हो, पहले इसको और इसको, फिर इसको और इसको, या इसको और इसको। 2 upon a minus b equal to 3 upon a plus b। what does this imply, 2a plus 2b equal to 3a minus 3b। this implies, let me bring a here and b here, तो ये बनेगा 2b plus 3b equal to 3a minus 2a, therefore 5b equal to a। so let me keep the equation like this only, and let's say if it is equation 1, it is equation 2, this I take it as equation 3। अब हमने ये कंपेयर किया तो मुझे ए और बी में इक्वेशन मिली। अब दो को करना है, या इसको और इसको कंपेयर कर लो या इसको और इसको कर लो, चॉइस इज योर्स। उसमें ए बी में हमें फिर से एक इक्वेशन मिलेगी। आल्सो लेट मी कंपेयर नाउ, आई एम कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, 3 upon a plus b, still it is your choice, you can compare first and third also, is equal to 7 upon 3a plus b minus 2, 3a plus b minus 2। let's see what it will become, 3 into 3a 9a, 3 into b 3b, 3 into minus 2 minus 6 equal to 7a plus 7b। so I am going to erase from this side। what does this imply, 9a and 7a will be shifted here, 9a minus 7a plus 3b minus 7b plus 3b minus 7b
equal to, and shift the constant to this side, it will be minus 6 here and it will become plus 6 on this side, correct? This implies 9a minus 7 is 2a, right? 2a, 3b minus 7b is minus 4b equal to 6. Can I take 2 common from here? It is a minus 2b, and can I write 6 as 2 into 3? So 2 and 2 will get cancelled. What does this imply? a minus 2b equal to 3. यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ले लेते हैं इक्वेशन 4. अब 3 में देखें a is 5b, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ पे. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से? 3. किसमें करनी है? इन 4. तो ये बनेगा a की जगह a नहीं लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे? 5b. तो इस a की जगह क्या लिखा हमने? 5b minus 2b equal to 3. What does this implies? 5b minus 2b is 3b equal to 3. Therefore, can you write b equal to 1? So b is equal to 1. The value we have got. Now let me substitute the value of b either in 4 or in 3, whatever you want. Substitute value of b in, I think in 3 it's easier. Let me substitute in 3. So 5 b, instead of b, what should I write now? 1 equal to a. Therefore a equal to 5. So I got the value of a and b if the equations which were given to me have infinite many solutions. So I am going to do the next part, second part. So please check it again. When the given equations have infinite many solutions, what does it imply? That a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So I am going to take the second part of question 2. Let me erase this one. Lastly, you can write the answer. A equal to 5 and b equal to 1. That is the answer that you should write. So coming to the next part, question 2, second part. Exercise 3.5, question 2, second part. It is for what value of k the following pair of linear equation have no solution. Equations are given 3x plus y equal to 1. Let's say equation number 1. And then 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1. Let's say equation 2. So here a1 equal to 3, b1 equal to 1 and c1 is 1. इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? Comparing the above two equation with the general linear equation, we get this है. a2 कितना आएगा? 2k minus 1. b2 कितना आएगा? k minus 1. And c2 कितना आएगा? 2k plus 1. ठीक? अब इसमें दिया k की वैल्यू फाइंड करनी है. For which value of k the following pair of linear equation have no solution, जिसके लिए k की solution नहीं होगी. Now for no solution, what the condition is? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Let's take it.
What does this imply? A1, it is 3 upon 2k minus 1 is equal to 3 upon 2k minus 1 equal to b1 upon b2, that is 1 upon k minus 1, and should not be equal to 1 upon 2k plus 1. First, let me take this and this, compare it. 3 upon 2k minus 1 should be equal to 1 upon k minus 1. What does this imply? 3 into k, 3k, minus 3 equal to 2k minus 1. This implies 2k. Let me bring it here. I am doing it direct. 3k minus 2k is k, और ये माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस 3 बनेगा, 3 माइनस 1 बन जाएगा 2. तो द वैल्यू ऑफ k इज 2. नाउ आई विल टेक दिस कंडीशन आल्सो, ईदर दिस और दिस, ठीक है. आल्सो 1 upon k minus 1 should not be equal to 1 upon 2k plus 1. What does this imply? 2k plus 1 should not be equal to k minus 1. 2k, it will, I am writing it directly, shift k है, तो ये क्या बन जाएगा? k बन जाएगा, और ये 1 उधर जाके minus 2 हो जाएगा. तो k cannot be minus 2. The value of k will be 2, but in no case it can take the value minus 2. So that's the answer for this. I am moving to one example now. On the similar pattern, let me write one example. It is find the value of k. Find the value of k for which the equations, let me write 2k x upon, 2kx plus 3y is equal to 5, and let me write 3x or only x, let me write 3 plus y equal to 7. Find the value of k for which the equations have unique solution. So this is example I am taking, it's not question in the book. एक हमने इनफाइनाइट का कर लिया, नो का कर लिया, तो यूनिक का भी कर लेते हैं. अच्छा, व्हाट इज a1 हियर? 2k. देखें, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2k. व्हाट इज b1? 3. व्हाट इज c1? 5. व्हाट इज a2? इट इज 3. व्हाट इज b2? इट इज 1. एंड व्हाट इज c2? इट इज 7. फॉर यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट द कंडीशन इज? a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. This is the condition. This implies This implies 2k by 3 should not be equal to 3 by 1. This implies 2k should not be equal to 3 3s are 9, and this implies k should not be equal to 9 by 2. Therefore, the question was find the value of k. हमारा आंसर आ रहा है k should not be equal to 9 by 2. Then what should be k equal to? फिर k किसके इक्वल आए? हमें तो ये वैल्यू निकालनी है कि k किसके इक्वल आए. ऐसे केस में मैं लिखता हूं k can take any real value except for 9/2. कि 9/2 नहीं है, उसके सिवाय कोई भी वैल्यू होगी तो यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगी.
इसमें एग्जांपल एक और मैं कर देता हूं। क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशंस, लेट मी राइट हियर 2x एंड लेट मी राइट k। अब देखें, here a is now a1 is 2 and c1 becomes 5k, a2 b2 and c2 remain same for unique solution this I am erasing this one। अब देखें क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन वही है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ k की क्या वैल्यू होगी। यहां देखें मेरे पास आता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 should not be equal to b1 upon a2। This implies 2/3 should not be equal to 3/1। k तो आया नहीं बीच में, अब क्या करें। पर आप ये देखें क्या 2/3 इक्वल होता है 3/1 के? नहीं होता, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू आ जाए इस पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो therefore I will write k can take any real value, k can take any real value। वो क्यों? आप k की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू k की ले लें, वो इसको इफेक्ट नहीं करती है। यानी हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ही रहता है, k की चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए। तो इसलिए, और ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसलिए k की कोई भी वैल्यू होगी तो सॉल्यूशन यूनिक ही रहेगी एंड देयरफॉर k कैन टेक एनी रियल वैल्यू। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now I am coming to the application part, वर्ड प्रॉब्लम भी जिसको हम बोलते हैं। इसमें लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। एज पर द क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हम इसी मेथड से करें, हम किसी मेथड से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका, ए पार्ट ऑफ मंथली पोस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने लाइब्रेरी का कि अगर बुक निकालते हैं तो उसके चार्जेस एक तो फिक्स चार्जेस है, एक फिर डेज के हिसाब से मैटर करता है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो दो चार्जेस हैं तो लिख लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹x। लेट सेकेंड चार्जेस है number of days one has taken food in the mess, charges for food per day, let charges for food and it is let's say per day, that is ₹y। according to question क्या, I am taking the first condition, when a student A takes food for 20 days she has to pay ₹1000 पे किए। देखिए फिक्स तो देंगे, फिक्स दिए, फूड कितने दिन खाया 20 डेज, एक दिन के चार्जेस y, तो 20 के कितने बन गए 20y और टोटल अमाउंट लिया उसने 1000 एंड लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1। आल्सो whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180, find the fixed charges and the cost of food per day। एक बच्चे ने, दूसरा बच्चा भी, उसने फूड लिया कितने दिन तक 26 डेज तक, तो इसके चार्जेस हो गए x प्लस 26y और वो कितने दिए 1180 and let's say it's equation 2। let's subtract the two equation क्योंकि x की कोफिशिएंट सेम है और as per the question आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो मैं लिखता हूं subtract 2 from 1। तो 2 from 1 है तो 1 को पहले लिखेंगे, x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और ये आएगा x प्लस 26y इक्वल टू 1180।
मैंने बताया था चाहे 2 from 1 कर लो या 1 from 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर कभी भी अल्टर नहीं होगा। माइनस 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 साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 26 इज -6 एंड 1000 माइनस 1180 इज -180। सॉरी, इट शुड बी, I think it's not correct. 0, 8, 1. हाँ 180. It's 1180. So minus minus cancel. So y equal to 30. So y was what? Charges of food per day. Cost of food per day is ₹30. And now substitute value. In, let's say equation 1, x plus 20, y की जगह कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू 1000। सो x plus 600 इक्वल टू 1000, देयरफॉर x इक्वल टू 400। हम अपनी सॉल्यूशन यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम आंसर लिखेंगे अपना, और उसमें क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, आंसर लिखेंगे और लिखेंगे देयरफॉर फिक्स चार्जेस थे x, और x की वैल्यू कितनी है ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दैट इज इक्वल टू ₹30। So that's all here. Now moving on to the next question. Let me raise this one. I'm going to take the second part. Second part of the same question, question 4. A fraction becomes 1/3. Fractions के भी क्वेश्चन हमने किए थे, मैं लिखता हूँ let fraction be equal to x upon y according to question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग it becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. खाली न्यूमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, डिनोमिनेटर को मत छेड़ो, तो फ्रैक्शन बनती है 1/3। व्हाट डज दिस इंप्लाई? 3x minus 3 equal to y। देखिए उन्होंने लिखा है कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, तो मेरे पास y की वैल्यू भाई मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लूंगा इसमें, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप कौन सा करते हैं, जो आपको इजी लगता है वो करें एज पर द क्वेश्चन में लिखा कोई भी यूज कर सकते हैं। Add it become 1/4 when 8 is added to denominator also। 8 को ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर सेम रहने दो, तो ये फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/4, ठीक है। दिस इंप्लाइज, एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। 4x इक्वल टू 4 into x, y plus 8. Substitute value of y. Let's say this is equation 2. Substitute value of y from 1 in 2. ये 1 से y की वैल्यू निकालो। y की क्या वैल्यू थी 3x minus 3। पहले 4x लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 3x minus 3, ठीक है। आगे क्या +8 तो 3x को इधर ले आओ, 4x minus 3x इक्वल टू यहाँ क्या बचा -3 + 8 जो कि बनेगा 5, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू ऑफ x
मैं 2 में कर रहा हूं इन इक्वेशन 2। 4 x की जगह क्या लिखेंगे, रादर 1 में करना ज्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 में नहीं कर सकते, बट 1 में मुझे लग रहा है ज्यादा सिंपल है, तो 1 में कर लेते हैं। 3 x की जगह 5 माइनस 3 इक्वल टू y। 5 3 15, 15 माइनस 3 इज 12, देयरफॉर y इक्वल टू 12। आंसर यहां नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा है तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज, क्या फ्रैक्शन बनेगी 5/12। दैट्स द आंसर, दिस इज द I'm taking third part. Question 4, third part. It is, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in that test? देखें, उसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ एक ठीक किए, कुछ एक गलत किए। मैं लिखता हूं लेट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली is equal to x, and let questions attempted incorrectly equal to y according to question। पहली कंडीशन दी है, पहली कंडीशन है कि 1 मार्क मिलता है, सॉरी 3 मार्क्स मिलते हैं राइट आंसर के। एक क्वेश्चन करेक्ट होता है 3 मिलते हैं, x करेक्ट है तो कितने मिलेंगे 3x, ये मार्क्स मिल गए। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए लूज करता है 1 मार्क, तो y के लिए करेगा -y, लूज का मतलब माइनस होगा। और यश का स्कोर किस केस में आता है 40। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आल्सो। सेकंड पढ़ते हैं, had 4 marks been awarded for each correct answer, कहता 4 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट आंसर के, एंड 2 डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, और 2 डिडक्ट होते हैं इनकरेक्ट के, तो स्कोर कितना आता है, then Yash would have scored 50। अच्छा, इसमें से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा 2x माइनस y इक्वल टू 50, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 25, therefore 2x माइनस y इक्वल टू 50। अब इन दो इक्वेशन में देखें, y के कोफिशिएंट सेम है -1, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, दैट इज योर चॉइस। I am subtracting 2 from 1. Still, if you want to do it 1 from 2, so you can do 3x minus y equal to 40, and it is 2x minus y equal to 50. Subtract करने साइन चेंज हो जाएंगे, we are subtracting minus plus and minus, 3x minus 2x is x, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 40 माइनस 50 is 10, तो we got the value of x straight away। x की वैल्यू है 10, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर्स थे वो 10 थे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन में पुट करें, 1 में या 2 में, wherever you want to put, 2 में कर लेते हैं। 2 x की जगह 10 माइनस y इक्वल टू 50,
20 minus 50, 2 into 10, 20 by 50. X is 10, 3 into 10, 30, 30 minus y 50. Let me see whether I am correct or not. Here it is wrong, because I have cancelled it. It is 2x minus y equal to not 50, it is 25. Please make the correction here. It should be 25. So here it is 25. Why? Because I cancelled 2 with 50, so it is 25. So 40 minus 25 is 15. It's not 10, it is 15. And that 2, now it is plus. Okay. Initially it was minus, now it is plus. So please make the correction. It is 25, x is 15. So let me see. 2. What's the value of x? X is 15 minus y equal to 25. Therefore, 15 to the 30, shift 25 this side, and y this side. It is minus y, it will become plus y. Therefore, 5 equal to y or y equal to 5. But our aim was not to get the value of x and y, that to be supposed. The question is find the total number of questions. Therefore, total number of questions. अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? सपोज एक पेपर में 15 क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस आए हैं. एक बच्चा 12 ठीक करता है, 3 रॉन्ग करता है, तो 12 ठीक करता है करेक्ट प्लस जो 3 रॉन्ग किए हैं, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो इसमें करेक्ट कितने किए? 15 और इनकरेक्ट 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर वाज 20. तो मैं नेक्स्ट वन कर रहा हूं. I am going to erase this one. पार्ट 4, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है. क्वेश्चन 4 Part 4. It is places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. एक हाईवे है और 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. कितना? मैं लिख देता हूँ. It is 100 किलोमीटर A और B के बीच में. This is point A, this is point B, this is point A. One car starts from A and another from B. एक कार यहाँ से शुरू हो रही है, एक कार यहाँ से. If the cars travel in the same direction, same direction का मतलब है एक कार यहां से चली, मैं इसको थोड़ा ब्लू से शो कर देता हूं. एक कार चली यहां से, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रही है, जो ए से चल रही है. जो बी कार है वो यहां से चलेगी, वो भी इधर ही चलेगी. सेम डायरेक्शन तभी बनेगी. एंड व्हाट्स द कंडीशन? अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती है, दे मीट इन 5 hours. तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, नेचुरल बी की स्पीड स्लो होगी, ए की फास्ट होगी, तो 5 hours में ये इतना डिस्टेंस कवर करती है, बी इतना करती है, तो दे मीट समवेयर हियर. यहाँ आके दोनों कार्स मिल जाए. ठीक है. अब ध्यान से सुनना, क्या टेक्निकल चीज है. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज दिस मच, ठीक है. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इज दिस मच. अब डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी को मैं माइनस कर दूं, बी को काट दूं, तो मेरे पास ए बी बचता है, which is 100. That is the technical point here, nothing else. So इसी तरह सेकंड कंडीशन दी है. If the cars travel in the opposite direction, they travel towards each other. Towards each other हो गया, एक कार इधर आ रही है और दूसरी कार इधर आ रही है. और अगर ऐसा है तो ये यहाँ पे मिल जाती है, और ये 5 hours पे मिली थी और ये कितने में मिल रही है? 1 hour में. अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज अगेन 100 किलोमीटर.
तो यही एक चीज है टेक्निकल, बाकी क्वेश्चन में इतना मुश्किल नहीं है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड्स ऑफ टू कार। मैं लिखता हूं लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। दो केसेस है इसमें, जब वो एक डायरेक्शन में जा रही है, जब वो ऑपोजिट जा रही है। तो मैं लिखता हूं केस 1 when cars move in same direction, when cars move in same direction क्या होगा? यहां पे लिखता हूं कार एट ए और यहां लिख रहा हूं कार एट बी, car at A and car at B. Now, what is the speed of the car at A? I am taking speed by s, that is x kilometer per hour, and here the speed is y kilometer per hour. If you want me to, I will make it little bit darker. Car at A and it is car at B. अच्छा, now what's the time taken when the cars move in the same direction? एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसने टाइम कितना लिया? 5 आवर, और इसका टाइम भी सेम 5 आवर। Can I find the distance? You know the formula for speed is equal to distance upon time. So distance equal to t into s. So t into s will become 5x, or here distance will become 5y. Now I have already told you, इसका distance minus इसका distance is equal to AB, which is 100. So what I will write, this implies 5x minus 5y equal to 100. Let me take 5 common. यहाँ आएगा x minus y equal to 100. 5 से कटेगा 20. Therefore x minus y equal to 12. And let's say it is equation number 1. Case 2. When cars move towards each other, again two things, car at A and car at B. What's the speed here? X kilometer per hour. What's the speed here? Y kilometer per hour. Now, what's the time taken when they move towards each other? Time taken is 1 hour. 1 hour for this and 1 hour for this. दोनों का टाइम वही है, 1 घंटे के बाद मिलते हैं इस पॉइंट पे आके। अब मैंने आपको बताया जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, when they move towards each other, distance traveled by this plus distance traveled by this is equal to this distance, which is 100. This implies, and first let me get the distance. Distance is speed into time. It is x kilometer, and here distance is y into 1, y kilometer. What does this imply? X plus y equal to 100. Let's say it is equation 2. Now I have to solve the two equations. I am erasing this part. If I add the two, देखें यहाँ y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ कोफिशिएंट है 1, यहाँ -1, साइन ऑपोजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ऐड कर लो सीधा, you will get the solution. Add 1 and 2, and I am just making a shortcut here. मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ. What is x plus x? 2x. And what is minus y plus y? कैंसिल हो जाएगा 0. What is 20 plus 100? 120. Therefore x equal to 2 यहाँ आएगा, ये कट जाएगा और ये 60 आएगा. ठीक है. Substitute value of x in equation 1 में कर लेते हैं. 1 में की वैल्यू को तो हमें मिला
x की जगह 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। देयरफॉर y, ऐसा करते हैं 20 को इधर लाते हैं, y को उधर शिफ्ट करते हैं और y कितना बन जाएगा 40। लास्ट में ये जरूर लिखना आंसर में स्पीड ऑफ कार एट ए वो थी x किलोमीटर, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट D इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। So that is over. Now I am left with the last one. Let me erase this one. So moving on to the last one. Question 4, fifth part. It is area of a rectangle gets reduced by 9 square unit. एरिया निकालने के लिए मैं लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो मैं लेट कर लेता हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x। यूनिट अगर कुछ दिया है तो ठीक है, इट इज यूनिट ही लिखा तो हम x यूनिट्स लिख देंगे। इट कैन बी मीटर, इट कैन बी सेंटीमीटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इट इज y यूनिट्स। क्लियर? अब क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया बनेगा xy, तो ये xy कितने यूनिट कम हो रहा है? 9 यूनिट कम हो रहा है। कब कम हो रहा है? व्हेन इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 से, और ब्रेड्थ को, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, तो एरिया xy बनता था वो अब लेस हो गया 9 से। पहले एरिया xy बनना था, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा। व्हाट डज दिस इंप्लाई? x into y is xy, x into 3 is 3x, minus 5y minus 15 equal to xy minus 9. Can I cancel xy on both the side? Therefore 3x minus 5y माइनस 15 आई एम शिफ्टिंग टू दिस साइड, और मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये प्लस 15 बनेगा, 15 माइनस 9 कितना आएगा? 6 आएगा, और इसको मैं इक्वेशन 1 तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। आल्सो एक कंडीशन जरूर होगी गिवन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कहते हैं लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दो, ब्रेड्थ को क्या करो एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, इसको भी इंक्रीज कर दो। अब ये न्यू एरिया बन गया, जैसा इस केस में बना था। ये अब न्यू लेंथ थी, ये न्यू ब्रेड्थ थी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ फिर एरिया आया, और एरिया 9 यूनिट कम हो जाता। इस केस में क्या है? द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट स्क्वायर, xy प्लस 67। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, कहने का मतलब मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x into y is xy, then x into 2 is 2x, then it is 3y plus 6 equal to xy plus 67। ये कैंसिल हो जाएगा xy, therefore 2x plus 3y, 6 को वहां शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा 61। इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको। कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं, उसके लिए
मैं x के कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 को किससे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 इक्वेशन लिया, इसको करेंगे 3 से, एंड क्योंकि साइन दोनों के सेम है तो क्या कर ले, सबट्रैक्ट कर ले, करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x, फर्स्ट को 2 से कर रहे हैं, माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, एंड हियर 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 1 जा 3, 6 3 जा 81, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, -10 और -9 बन गया -19y इक्वल टू -183 प्लस 12, 3 minus 2 is 1, 8 minus 1 is 7 and it is -17, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, erase it up to here. It was question 4, fifth part. So 19y equal to 171. 19y equal to 171. What does this imply? Y equal to 171 upon 19. 19 9s are 171. Therefore, y equal to 9. Substitute value of y. In let's say equation 1, ठीक है, 3x minus 5 into 9 equal to 6. This implies 3x minus 45 equal to 6. Now I can erase this. मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया. 3x equal to 6 plus 45. 3x equal to 51. Therefore, x equal to 51 by 3. 17 3s are 51. And therefore x equal to 17. Now what I need in the question was, it is find the dimensions of the rectangle. Dimension का मतलब है लेंथ और ब्रेथ. तो मैंने आपको बताया हमेशा लास्ट में क्या करना है, आंसर लिखना है. Therefore लेंथ पूरा लिखेंगे आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट्स एंड पूरा लिखेंगे आप ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रेथ इक्वल टू whatever value of y we have got, 9 units. So that's all in this exercise. Next time when we will meet, we will start with the next exercise. I think that is exercise 3.6. So after that, after completing this, I think this is the last exercise. This should be the last. No, it is not the last. After completing this, I am going to take some extra problems in application part and in some other questions.